Okay, good morning students. From today we are going to start with the problem. Okay, before we start with the problem, you have to read the problem first. Okay, what is there? Daya and Kashma are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1 from the following trial balance. And additional information, what you are supposed to do, you are supposed to prepare the trading account, profit and loss account, and your balance sheet. Okay, so this is the details which are given to you all. Okay, then first thing what you have to do, you have to see the adjustments. Okay, because if you see first the adjustment, then you can directly do with the problem. Okay, so let's see the adjustment. What is the first adjustment? It is closing stock rupees 40,000. Okay, here what it is given, closing stock rupees 40,000. Now this closing stock rupees 40,000, where it will come, the first effect will be in trading account and the second effect will be in your balance sheet asset side. Okay, then the second is what, depreciate building and machinery at 5% and 3% respectively. Now here there is a working note, we need to find out the depreciation amount. So let's find the depreciation amount. Here working note 1, calculation of depreciation, building at 5%. Okay, now what we are supposed to do, we have to calculate the depreciation amount. Now what is the amount of building? Okay, where is building? Here building is 75,000. So the amount will be 75,000 multiply by 5 divided by 100. Okay, so this is your, what you call, your problem. Okay, so once you do the this thing calculation, how much you get? You get 3750. Okay, so this is the answer what you get on building, the depreciation amount. Next comes machinery, which is at 3%. Now what is the amount of machinery? It is 1,14,000. Here it is, see, 1,14,800. So 1,14,800 multiply by 3 divided by 100. The answer you get is 3,444. Okay, so this is the answer what you get. Then bills receivable include dishonor of bill rupees 3,000. now bills receivable हमें किससे मिलते हैं? हमें मिलते हैं हमारे डेटर्स से. सो वेयर आर डेटर्स? सन्ड्री डेटर्स, इट इज 1,32,500. now from this 1,32,500 अभी हमें मिला ही नहीं, 3,000 we have not received, it is dishonor, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ. that means we have to deduct it from our debtors. so debtors का अमाउंट कितना है? 1,32,500. so from this we are going to deduct this dishonor. Okay, now what is the amount of bills dishonored? It is rupees 1,32,500. bills dishonored. What is happening to this? bills dishonored, how much? Amount of bills dishonored is 3,000. Okay, so this is the first thing, that is bills are dishonored. Then what is there?
goods worth rupees 1000 taken by Daya for personal use and was not recorded in the books of account. Now it is what goods are taken by Daya. Now where these goods will come, this will come in your trading account on the credit side because it is goods worth. Okay, मतलब goods लेके गए, so it will be related to trading account. So this will come in trading account and the second effect will be capital से ये drawing करके deduct किया जाएगा. Okay, then write off rupees 1800 as bad debts. Okay, ये क्या करना है, हमें bad debts की तरह calculate करना है and maintain RDD at 5% on sundry debtors. So ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, हमारे sundry debtors के ऊपर आएगी. Then the sixth one is what, goods of rupees 6000 were sold but no entry was made in the books of account. These are what your unrecorded sales. Unrecorded sales मतलब the first effect will be goods are were sold but not recorded. So when it is goods, you are supposed to do it in the credit side of your trading account. जो याद रखना, जो भी related to goods रहते हैं, जैसे कि ये goods है, ये goods है, it will come in your trading account and plus it will come in your debtors because debtors को हम लोग क्या करते हैं, we sell the goods. So here there are unrecorded, that means हमारा जो अनरिकॉर्डेड सेल है वो क्या करना है, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स. इट इज नॉट, इट इज एड. ओके, सो अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है हमारा, 6000. सो हियर 1,13,025. Okay, 1,32,500, 33,000 plus 6,000. So when we add, what answer we get? We get 141,500. Okay, so this is the answer what we get, that is 141,500. Now from this, now on this amount what you are supposed to do, we are supposed to calculate the, we have to return off the bad debts. Okay, जो हमारा bad debts है वो हमें deduct करना है. So less bad debts which is new. Okay, कितना है हमारा bad debts, हमारा bad debts है 1,800. here it is given, see 1,800 as bad debts. Now when you deduct this from 1,41,500, the answer what you get is 1,39,700. Okay, so this is the answer what you get. Now once you have deducted the bad debts, that is new bad debts, the next टर्न कम्स ऑन RDD. हमें 5% RDD कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर, 1,39,000 के ऊपर हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द RDD अमाउंट. ओके, तो RDD अमाउंट कितना है हमारा, लेस RDD at 5%. कितना आएगा हमारा, इफ यू कैलकुलेट 1,39,700, इट कम्स टू 6985. okay, it will come to 6985. okay, so this is the after calculating the debt. So total debtors amount which will reflect in your balance sheet will be 1,32,715. so this is your working note which is related to your debtors. okay, so total amount which will reflect in your balance sheet will be 1,32,750. okay, so now let's start with the problem first. अभी हमेशा याद रखना, जब आप लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे मार्किंग करके ले लेना जो हमारे ये. नाउ हियर आई कैन नॉट डू बिकॉज देयर इज नो पेन ओवर हियर. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, whenever there is something, जैसे कि डेप्रिसिएट, बिल्डिंग को मार्क कर लेना, कहाँ है, मशीनरी को मार्क करो, फिर यहाँ पे बिल्डिंग को मार्क करो. ओके, सो दिस एवरीथिंग यू हैव टू मार्क एंड कीप.
Now let's start with the thing. So here डेबिट साइड में क्या है, फर्स्ट स्टॉक इज how much, और हमारा ये फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके लेना है. सो व्हाट आई हैव रिटन in the books of Daya and Kashma trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. I hope you remember the problem which we have done in your 11th standard. Debit and credit. Particulars amount rupees, particulars amount rupees, and I have also drawn the balance sheet. That is balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. Okay, so what is the first thing? To opening stock. Okay, to opening stock. Okay, now opening stock amount will come in the outer column. Here it is given 1/4/2018. That means this is the opening stock. हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ पे मिलेगा, हमारा एडजस्टमेंट मिलेगा. ओके, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर ट्रायल बैलेंस. ओके, ओपनिंग स्टॉक ओनली विल रिफ्लेक्ट इन ट्रायल बैलेंस. तो कंफ्यूज मत होना वेदर इट इज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. अगर ऐसे कुछ दिया तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट विल बी ओपनिंग स्टॉक ओनली. ओके, अमाउंट कितना है हमारा 65,000. ओके, नेक्स्ट इज वन बिल्स रिसीवेबल. ना बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, हमारे ट्रेडिंग एसेट साइड में आएगा इन योर बैलेंस शीट. ओके, सो आई राइट ओवर हियर बिकॉज इट इज करंट एसेट, सो आई हैव टू राइट इट डाउन. बिल्स रिसीवेबल कितना है हमारा बिल्स रिसीवेबल. ना बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, हमारे इनर कॉलम में आएगा, क्योंकि यह देयर इज वन थिंग, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डीज ऑनर बिल ऑफ ₹3,000. तो ये हमारा कितना है 3,000 का डीज ऑनर हुआ है. सो वी हैव टू डिडक्ट इट. सो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, इट इज 28,000 लेस बिल्स डीज ऑनर कितना है हमारा बिल्स डीज ऑनर, इट इज 3,000. So the answer what you get, you have to write it in your outer column. So from 28,000 if you deduct 3,000 you get 25,000. Okay, so here ये हो गया डिसऑनर का पहली एंट्री. ओके, सो हियर द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डिसऑनर. ओके, ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है इसमें क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल 3,000. तो उसका फर्स्ट वाला हो गया. ओके, फर्स्ट इफेक्ट हो गया. नाउ द सेकेंड इफेक्ट विल बी इन योर डेटर्स. ओके, सो देन व्हाट इज देयर, वेजेस एंड सैलरीज. ओके, सो नाउ व्हाट इज देयर, वेजेस एंड सैलरीज. सो to wages एंड सैलरीज. अभी देखो यहाँ पे क्या है, पहला वेजेस है. सो वी विल इंक्लूड इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस एंड सैलरीज हाउ मच, 9,000 रुपीज. ओके, सो यहाँ पे क्या है, 9,000. देन कम्स योर सन्ड्री डेटर्स. ओके, तो ऐसे हम लोगों को एंट्री पास करते जाना है, क्योंकि इफ़ यू पास इन सच अ वे यू विल सेव योर टाइम. जब रीड करते हो तभी एंट्री पास करते रहना. ओके, सो नेक्स्ट कम्स इज सन्ड्री डेटर्स. सो सन्ड्री डेटर्स, अभी हमारे सन्ड्री डेटर्स को बहुत बड़ा कैलकुलेशन है. सो व्हाट इज द सन्ड्री डेटर्स अमाउंट, इट इज 1,32,500. Okay, now from this sundry debtors what you are supposed to do, we have to add bills. ये देखो बिल्स डिसऑनर का सेकेंड इफेक्ट भी हो गया. बिल्स डिसऑनर इज how much, it is 3,000. Okay, so whatever we have done in our working note, same thing you have to copy over here. So when you did add 1,32,500 ko, if you add 3,000 what you get, 1,35,500.
Okay, so this is the answer what you get. Then what you are supposed to do, we have to add what is there, unrecorded sales. Unrecorded sales. Now what is the unrecorded sales? It is 6000. Here see, goods of rupees 6000 sold but no entry was made. So हमें क्या करना है, ये 6000 1,35,000 को ऐड करना है. So how much it comes? It comes to 1,41,500. Okay, now unrecorded sales हो गया. Then we have to deduct bad debts. हाँ, bad डेट्स. अभी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में भी एक नज़र मारनी है कि वेदर देर इज़ एनी बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस. इफ देर इज़ एनी बैड डेट्स देन इट विल बी नो एज योर ओल्ड बैड डेट्स. ओके, तो ये ओल्ड बैड डेट्स हमारे इसमें नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा बिकॉज इट विल ओनली कम इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो हियर एवरीथिंग विल बी न्यू. ओके, जो न्यू है मतलब जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है वही आ जाएगा. सो बैड डेट्स कितना है हमारा 1,800. ओके, सो यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 1,41,000 1,41,500 से 1,800 वी हैव टू डिडक्ट. सो हाउ मच यू गेट 1,39,700. okay, so this is the answer what we get. Then what we are supposed to do, we have to deduct the RDD at how much it is. Here see, bad debts and maintain RDD at 5%. so 5% RDD हमें या इसके ऊपर कैलकुलेट करना है. that is 1,39,700 less RDD at 5%. so how much you get? You get answer is 6,985 rupees. okay, so total what you will do, you will write it in the outer column. that is 1,32,000 what we have done in our working note 715. so this is your working note. whatever working note you have done तो वो हमें यहाँ पे लिखना है. okay, so here it is. okay, so ये हो गया हमारा डेटर्स का. देन कम्स द बैड डेट्स. अभी देखो मैंने बोला ना बैड डेट्स इज देयर. सो व्हेन देयर इज बैड डेट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू शो इट इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, वी विल गिव सम स्पेस. ओके, सो नीचे लिखना टू बैड डेट्स. अभी बैड डेट्स का एक फॉर्मूला रहता है. होप यू रिमेंबर, आई हैव टॉट यू इन योर 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो टू बैड डेट्स. ओके, बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, दिस इज व्हाट योर ओल्ड. ओके, इट इज ओल्ड बैड डेट्स. ओके, नाउ वॉट एवर ओल्ड बैड डेट इज देयर. ओके, ये जो ओल्ड बैड डेट्स है उसका अमाउंट हमें पहले लिखना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स न्यू RDD लेस ओल्ड RDD. ओके, ये सपोज आप लोगों को याद है, आई होप. ओके, सो ये हमारा बैड डेट्स कितना है 1,000. उसके ऊपर हमें क्या करना है, एड न्यू बैड डेट्स. हमारा न्यू बैड डेट्स कितना है, ओके, हमारा न्यू बैड डेट्स इज 1,800 प्लस you have to add new RDD. हमारी न्यू RDD कितनी है, न्यू RDD इज 6,985. ओके, सो हमारी न्यू RDD है 6,985. सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू टोटल 6,000 प्लस 8,000 प्लस 1,800 प्लस 1,000. इट कम्स टू 9,785. okay, 9,785. so now from this
what you have to do, we have to see whether there is RDD. अगर old RDD है तो कहाँ पे रहेगी, वो credit side of the trial balance. So here it is, see, RDD 1800. So this is what your old RDD. So less old RDD कहाँ पे है, it is in your trial balance 1800. So total कितना आएगा, it will come to 7985. okay, so this is your what your जो हमारा बैड डेट्स का वर्क ये है कैलकुलेशन है, इट विल कम इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट कम्स परचेजेस. सो परचेजेस विल कम इन योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सो टू परचेजेस, ओके, कितना है हमारा. then you have to see whether there is purchase return. okay, yeah, there is a purchase return, that is 4000. so हमें वही क्या करना है, purchase return को डिडक्ट करना है. so हमारा purchases कितना है, 1,48,000. okay, less purchase return. okay, purchase return कितना है हमारा, purchase return is 4000. so from 1,48,000, if you deduct 4,000, you get 1,44,000. okay, then comes what is the motor car. now where this motor car will come, it is your what, it is your asset. okay, so it will come in your asset side. so motor car के ऊपर हमें कुछ adjustments नहीं है. so directly write in your asset side motor car, because there is no adjustment for your motor car. okay, so motor car को कुछ adjustment नहीं है, तो we have to directly write the amount. okay, so motor car, what is the amount of motor car, it is 68,000. where is 68,000. okay, so this is your motor car. then comes machinery. अभी हमें machinery का पता है, there is a calculation of depreciation. depreciation कितना है, at 3%. so machinery पहले asset में लिखो, machinery account कितना है हमारा, machinery is 1,14,800 less depreciation at 3%. okay, depreciation कितना है, 3%. so we have done the calculation 344. okay, so this is the answer what we get. so total will be, when you deduct 1,14,800 से अगर हम लोग 3,444 डिडक्ट करेंगे, so answer will be 1,11,356. okay, so this is the answer what you get. now ये depreciation का हो गया पहला effect. then the second effect will be in your profit and loss account. so to depreciation, so depreciation account में पहला किसका आएगा, फर्स्ट machinery at 3%. how much we have calculated, 3,000. we have calculated 3,444. yes, so this is the amount of depreciation which we have calculated. okay, then next is what, your audit fees. okay, audit fees कहाँ पे आएगा, audit fees will come in your profit and loss account. so we have to leave one more space for your depreciation, because building के ऊपर भी depreciation है. so once that turn come, building जब आएगा तब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. so next is your
कितनी है हमारी, directly you have to write because there is no other calculation, so 1200 is your audit fees. Then comes sales return. Okay, so sales return हम लोग जब हमारा क्रेडिट साइड करेंगे तब याद रखेंगे. ना डिस्काउंट इज व्हाट, ना दिस डिस्काउंट यू हैव अलाउड. ओके, अगर हम लोगों को यहाँ पे दे दिया so that means it is discount allowed. So डिस्काउंट कितना है हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट इज हमारा, there is no calculation, so directly you have to write it in the outer column, that is 2300. okay, then comes building. okay, अभी building आ गई, so building का हम लोग क्या करेंगे, हमारे assets में लिख लेंगे. so building कितनी है हमारे, we have building that is 75,000 less we have depreciation also, less depreciation at 5%. ओके, हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 5%. तो हम लोग जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था तो हमें कितना आया डेप्रिसिएशन, वी गॉट डेप्रिसिएशन ऑफ हाउ मच, 3750. ओके, ये था हमारा डेप्रिसिएशन. तो इफ़ यू डिडक्ट 75,000 से अगर हम लोग 3750 डिडक्ट करते हैं, तो हाउ मच वी गेट 71,250. ओके, तो ये हो गया हमारा depreciation on building. okay, so this second effect will go where, it will go in your profit and loss account. so here it will come to building at 5%. okay, so building के ऊपर हमारा कितना है, we have depreciation of हमारा, we have depreciation of 5%. okay, so depreciation कितना amount है, depreciation amount is 3750. okay, so amount is 3750. now अभी depreciation का दोनों ये जो है वो दोनों जगह पे हो गया, that is your depreciate building and machinery at 5% and 3%, it has gone in both the side. so 3444 plus 3750, हमें इसका क्या करना है, we have to do the total of both the depreciation. so it will come to 7,194. तो ये जो अमाउंट है वो हमें कहाँ लिखना है, हमारे आउटर कॉलम में लिखना है. ओके, देन कम्स वन, हमारा बिल्डिंग हो गया. देन कम्स कैश एट बैंक. नाउ दिस कैश एट बैंक विल कम ओवर वेयर, दिस कैश एट बैंक विल कम इन योर बैलेंस शीट. ओके, सो कैश एट बैंक, cash at bank हमारा directly in the outer column 12,000. okay, then is what 10% investment. okay, now when it is 10% investment तो हमें क्या करना है, 10% अगर उन्होंने दिया that means we have to calculate the working note. okay, अभी देखो ये क्या हो गया, सारे हमारे hidden ये है what you call hidden adjustment. so the working note 3 क्या आएगा, working note 3, that is calculation of interest on investment. okay, so calculation of interest on investment, हमारा investment का amount कितना है, we have investment कितना है हमारा 20,000. so 20,000 and it is directly given 10% investment. so 20,000 multiply by 10 divided by 100, हमें आएगा
₹2000. ओके, सो 2000 हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है. सो हियर इट विल शो फर्स्ट कहाँ पे आएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट में आएगा, हम लोग हमारा इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. सो वी विल राइट इन्वेस्टमेंट, सॉरी इट इज 10% इन्वेस्टमेंट. 10% इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 20,000 एड इंटरेस्ट मिलने वाला है. ओके, बिकॉज नथिंग इज मेंशन, सो अकर्ड, इंटरेस्ट अकर कितना है 2000, सो इट विल कम टू 22,000. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट. Now this same thing where you have to show, we have to show in our profit and loss account. So profit and loss account में नीचे लिख लेना by interest on investment occurred. ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अमाउंट कितना है, we have amount, we have to write it in, it should not come in this second column. Okay, it should get fit over here only. ओके, यहाँ पे अंदर ही रहना चाहिए, इट शुड नॉट कम आउट, अदरवाइज वो आप लोग बोलेंगे कि मैम ने ऐसा बोला, वी हैव टू कम आउट. नो, नथिंग शुड कम आउट फ्रॉम द कॉलम. ओके, सो हियर कितना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हमारा 2000, so it will come in a outer column. ओके, हो गया, ये उनका क्या हो गया, दोनों इफेक्ट हो गए. ना थर्ड वन इज वन, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months. ओके, तो यहाँ पे भी वर्किंग नोट है, बिकॉज दिस इज आर व्हाट, दीज आर ऑल हिडन, व्हाट यू कॉल, हमारे हिडन एडजस्टमेंट्स है. तो वर्किंग नोट 4 क्या है हमारा, एडवर्टीजमेंट. नाउ एडवर्टीजमेंट एज यू ऑल नो, एडवर्टीजमेंट क्या है हमारा, इट इज़ फॉर 12 months. हमारा कितने महीने का रहता है, 12 महीने का रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 9 महीने के दिया है. कितना दिया है, सो 4,500 वर्किंग नोट आउटस्टैंडिंग, हमारा जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट कितना है वो कैलकुलेट करना है. तो हमारे कितना है 4,500 फॉर हाउ मेनी मंथ्स दिया है, 9 months दिया. ओके, सो इट इज गिवन फॉर 9 months. नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू डिडक्ट 4,500 डिवाइडेड बाय 9. तो हमें क्या पता चलेगा, एक महीने का कितना है. ओके, सो इट कम्स टू अराउंड 500 रुपीज़. एक महीने का हो गया 500. तो हमारा 9 महीने का ही दिया है. हमारे ईयर में कितने महीने रहते हैं, 12 months रहते हैं. सो ईयर व्हाट आर सपोज टू डू, कितने महीने का, वी हैव टू फाइंड फॉर, वी हैव टू फाइंड फॉर 3 months. हमें कितना में करना है, 3 months का जो रिमेनिंग है वो फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये कैसे आया, 3 months, 12 months minus 9 months. ओके, सो वट एवर यू गेट. ओके, 3 months आया हमारा, 9 months minus 12 months. ओके, सो वी गॉट 3 months. ओके, तो 3 months हमें कितना क्या करना है, 500 multiplied by 3. So whatever answer you get, that is 1,500. These are what your outstanding amount. Okay, तो पहले क्या करो, पहले उसको डिवाइड करो, एक महीने का फाइंड आउट करो, उसके बाद कितने महीने रिमेनिंग है उससे मल्टीप्लाई करो. द आंसर यू व्हाट यू गेट इज योर आउटस्टैंडिंग. ओके, सो यहाँ पे एंट्री हम लोग क्या दिखाएंगे, पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट को दिखाते हैं. ना वेर इज योर एडवर्टीजमेंट, सो to advertisement
एडवर्टीजमेंट कितना है हमारा, एडवर्टीजमेंट वी हैव 4500, ओके। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, ओके। तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फॉर 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, इट इज 1500। टोटल कितना आया 6000, ओके। सो इट कम्स टू 6000 रुपीज़, ओके। ये हो गया उसका पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इट विल कम इन योर लायबिलिटी साइड। सो लायबिलिटी साइड में टोटल कितना है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट कितना है 1500, ओके। सो एडवर्टीजमेंट के दोनों हो गए। नाउ कम्स द रॉयल्टी। नाउ वेयर यू विल शो दिस रॉयल्टी, दिस रॉयल्टी विल कम इन योर बैलेंस शीट, ओके। सो ये कहाँ पे आएगा, हमारे बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम लोग। बट फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर द रॉयल्टी अमाउंट, मतलब यहाँ पे हमें कुछ अगर डिटेल्स दिया है कि रॉयल्टी कहाँ पे आ जाए, मतलब रॉयल्टी के बारे में अगर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं हमारे, देन यू हैव टू फाइंड आउट डेट ऑल्सो, ओके। सो रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, इट इज़ 3000 रुपीज़, ओके। नाउ रॉयल्टी का अगर हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया, देन इट विल डायरेक्टली गो इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। सो I said balance sheet, sorry for that, it is trading account, okay. So royalties, okay, so royalty कितना है, हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया, so it will be 3000 रुपीज़, ओके। रॉयल्टी हो गया हमारे 3000। सो दिस इज जो एडजस्टमेंट्स, मतलब ये जो सारे है इट इज फ्रॉम द डेबिट साइड। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्रेडिट साइड, ओके। हमारा क्रेडिट साइड देखते हैं हमें क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इज जनरल रिजर्व। Now this general reserve where it will come directly in your balance sheet liability side, okay. So जनरल रिजर्व कितना है हमारा, जनरल रिजर्व that is 14500, okay. Then comes the capital, okay, जो हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल कहाँ पे आएगा हमारे, इसमें आएगा योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल, ओके। फर्स्ट वन, अभी कैपिटल के लिए हमें जगह छोड़नी है, बिकॉज वी हैव टू ऐड आवर नेट प्रॉफिट। अगर उन्होंने कुछ गुड्स लेके गए तो वो डिडक्ट करना है। सो वट एवर इज देयर, हमें थोड़ा स्पेस छोड़ के करना है। सो दया का कितना है, दया का कैपिटल है 1 लाख। सिंस देर इज़ नथिंग गिवन, मतलब एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग डायरेक्टली एक इसमें बैलेंस शीट में ही करेंगे, उसका एक सेपरेट अकाउंट नहीं करेंगे। देन वट एवर नेट प्रॉफिट नेट लॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेस व्हाट इज देयर, ही हैज़ टेकन सम गुड्स, ओके। हियर सी, एक इफेक्ट कहाँ पे देना है हमारा, गुड्स टेकन ओवर बाय दया, ओके। सो हम लोग क्या करना है, गुड्स टेकन ओवर बाय दया, ये पहला इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देंगे, लेस गुड्स टेकन ओवर। गुड्स टेकन ओवर कहाँ पे, अमाउंट इज हाउ मच, इट इज 1000 रुपीज, okay. Now goods taken over by Daya 1000. The second effect will be in your trading account. Wait, पहले हमें हमारा सेल्स का पूरा देखना है। देन बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया, कितना है टेकन ओवर बाय दया, डायरेक्टली 1000, ओके। गुड्स टेकन ओवर बाय दया 1000, ओके।
गॉट इट। तो इसका भी हो गया गुड्स टेकन ओवर बाय द ईयर, सो ये पूरे एडजस्टमेंट हो गए। देन नेक्स्ट इज व्हाट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे आएंगे हमारे, क्रेडिटर्स विल कम इन योर बैलेंस शीट ऑन योर लायबिलिटी साइड। Creditors how much, there is no adjustment related to creditors, so directly 98,000। ओके, सो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है, आरडीडी हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया। नेक्स्ट कम्स सेल्स। ओके, सेल्स कितना है हमारा सेल्स। अभी देखो यहाँ पे दिया है गुड्स ऑफ ₹6,000 वॉज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड, सो ये क्या हो गया हमारा अनरिकॉर्डेड होगा, तो हमें वो हमारे सेल्स में क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स क्या है हमारा, सेल्स हाउ मच, इट इज़ 2,85,500 एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है हमारा, 6,000 ओके, अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया हमारा 6,000। देन देयर वाज योर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 2,000। सो लेस, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे वी विल गेट द आंसर 2,91,500। ओके, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है हमारा, वी हैव सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज़, तो 2,000 इज योर सेल्स, तो अमाउंट कितना आएगा, इट विल कम टू 2,89,500। okay, so these are your sales return. then comes outstanding wages। अभी ये outstanding wages हमें क्या करना था, we have to show it in your, हमारा जो outstanding wages हम लोगों को किधर दिखाया है, it is shown in your ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में जब आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाते हैं देन डायरेक्टली यू हैव टू शो इट इन योर बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस और सैलरीज है तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं आएंगे, इट इज़ ओनली आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो इट विल कम ओवर हियर। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है हमारा 700 रुपीज़। ओके, हो गया ये 700। देन कम्स परचेज रिटर्न, हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। देन कम्स डिस्काउंट, अभी ये डिस्काउंट कहाँ पे आएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सो बाय डिस्काउंट कितना है हमारा, इट इज़ 1,800। तो हो गए सारे एंट्रीज। ओके, हियर वी हैव डन ऑल द एंट्रीज। नाउ मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट, देखना है कि हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स किए या नहीं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, क्लोजिंग स्टॉक वी हैव नॉट इंक्लूडेड। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, हियर इट इज 40,000। ओके, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, हमारे बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इट इज 40,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, सो डेप्रिशिएट हम लोगों ने मशीनरी को किया और बिल्डिंग को किया, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, depreciation building and machinery we have given both।
देन गुड्स वर्थ ₹1000 वर टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज। तो उसका पहला इफेक्ट हम लोगों ने कहाँ दिया, यहाँ पे देखो, गुड्स टेकन ओवर बाय दया, वी हैव गिवन द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट उसके यहाँ पे दिया, लेस गुड्स टेकन ओवर बाय दया, 1000 रुपीज़ उसके कैपिटल अकाउंट में दिया। थर्ड वन इज व्हाट, write off ₹1800 as bad debts and maintain RDD। so we have done over here, हम लोगों ने ये देखो बैड डेट्स 1800 एंड RDD 5% कैलकुलेट किया। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इट विल बी ओवर हियर, ये देखो बैड डेट्स, न्यू RDD, ये हो गया उसका सेकेंड इफेक्ट। देन कम्स गुड्स वर्थ ₹6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। सो फर्स्ट कहाँ पे आएगा, इट विल कम इन योर अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आ गया। देन द सेकेंड इफेक्ट विल बी ईयर इन योर डेटर्स पे यहाँ पे देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स वी हैव एड 6000। सो ऑल द हमारे जो एडजस्टमेंट है वो हम लोगों ने कर दिए। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू डू द टोटल टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। नहीं तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर देर इज लॉस है या प्रॉफिट है। तो हम लोग इसको जस्ट फाइंड आउट करेंगे। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे है, या दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इतना ही है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। सो फर्स्ट वी विल सी द क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है, वी विल सी। इट इज कमिंग टू 3,30,500। ओके, और हमारा जो डेबिट साइड है उसका टोटल कितना आता है, विल चेक। उसका टोटल आ रहा है 2,21,000। यह हमारा डेबिट साइड का टोटल है। डेट मीन्स आर क्रेडिट साइड इज मोर देन आर डेबिट साइड। ओके, सो हमें क्या करना है, हमारे क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से डिडक्ट करना है। सो वट एवर अमाउंट वी गेट, ओके, हमारा जो अमाउंट हमें जो मिल रहा है वो अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू योर डेबिट साइड इट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स सी। सो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग अगर 33,30,500 को अगर हम लोग हमारे 2,21,000 से माइनस करेंगे, द आंसर व्हाट वी गेट, द ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट वी गेट इज 1,09,500। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट $1,09,500। ओके, सो ईयर हमें अभी टोटल करना है। सो टोटल कितना है, 3,30,500। यहाँ पे आएगा 3,30,500। ओके, देन ड्रॉ टू लाइन्स। ये क्या है, हमारा डिफरेंस है। डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज डिफरेंस। ओके, ये होगा हमारा डिफरेंस। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसफर इट टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, it is here carried down, it is brought down। कितना है हमारा, 1,09,500। ओके, सो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट आवर
total of your what you call your debit side and credit side of profit and loss account. So यहाँ पे देखते हैं हमें कितना मिला है. It is, we will do the total. It is coming to 1,13,300 और इसका टोटल कितना आ रहा है 24,679. तो हमारा कौन सा साइड हैवी है, हमारा क्रेडिट साइड इज हैवियर देन द डेबिट साइड. ओके, सो दैट मीन्स वी आर हैविंग अ नेट प्रॉफिट. अभी जब नेट प्रॉफिट मिलता है, ओके, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट अमंग द पार्टनर्स. अभी यहाँ पे क्या दिया है, इनका रेशियो कितना है 1:1. दैट मीन्स इक्वल डिवीजन होगा. सो डिफरेंस यू हैव टू राइट. ओके, टू नेट profit transferred to partners capital account. ओके, अभी ये क्या होगा हमारा, it should be on one particular line. ओके, ये पूरा जो है it should be in one particular line. don't mix it. okay, तो ये हम लोग मैं छोटा करूँगी इसको, make it. okay, so it should be on one particular line. so first partner कौन है हमारा, it is दया, और second partner कौन है हमारा कश्मा. ओके, तो हम लोगों को जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है. हमारा टोटल कितना आ रहा है 1,13,300. ओके, यहाँ पे भी लिखो 13,300. जो हमें डिफरेंस आता है वो अमाउंट है 621. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस व्हाट वी गेट. नाउ हमें ये क्या करना है, हम लोगों को 88,621 जो अमाउंट है वो हम लोगों को इन दोनों में डिवाइड करना है. तो अमाउंट कितना आएगा हमें 44,311. ओके, तो यहाँ पे ये ऊपर मतलब इट इज़ कमिंग मोर और लेस, सो एक किसी को लेस करना है. सो 44,310. ओके, सो देन इट कम्स टू 88,621. सो ये हो गया हमारा ये वाला टोटल. सो लेट्स डबल लाइन ड्रॉ करना है सबको. अदरवाइज इफ यू डोंट ड्रॉ डबल लाइन दैट मीन्स यू हैव नॉट क्लोज द अकाउंट. ओके, यहाँ पे अगर डबल लाइन नहीं ड्रॉ करते तो दैट मीन्स यू हैव नॉट क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, नेक्स्ट दिस वट एवर वी हैव गॉट, हमारा जो ये है व्हाट यू कॉल नेट प्रॉफिट व्हाट वी हैव रिसीव्ड. okay, that amount you have to show it in your balance sheet to the particular partner's account. okay, so let's show it in your balance sheet. okay, जब ये देखो ये हमारा क्या है बैलेंस शीट है. दया का कितना है 1,16,000 है, सॉरी 1,60,000 है. ओके, सो दिस इज योर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दया का टोटल है. सो उसको क्या करना है हमें ऐड नेट प्रॉफिट व्हाट वी हैव रिसीव्ड. ओके, हमें नेट प्रॉफिट कितना मिला है, वी हैव रिसीव्ड 44,310 इज द नेट प्रॉफिट विच वी हैव रिसीव्ड. सो फ्रॉम दैट वी हैव टू डिडक्ट 1,000. तो हमें टोटल कितना आता है 2,03,311 इज द टोटल व्हाट वी गेट. देन हमारा दूसरा क्या है, वी हैव और नेक्स्ट इज कश्मा का कैपिटल. कश्मा, ओके, सो कश्मा का कितना आता है, कश्मा का टोटल कितना है, हियर इट इज देयर. सी कश्मा 1,20,000. तो 1,20,000 लेस, सॉरी इट इज एड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, इट इज कमिंग टू 44,310.
10, it is here 44,311. Okay, it is not 10. 4,311 and 44,310, it comes to 1,64,310. ओके, सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट. ओके, so let's see the total. If it is telling, that means our problem is correct. Okay, so let's see our liability side. 4,82,321. Okay, so let's see our asset side. Hope it tallies. Yes, it is telling, so our problem is correct. So it is similar like your 11th standard problem, जो हम लोगों ने 11th standard में किया था वैसे ही है, सेम है. ओनली थिंग आप लोगों को याद में रखना है, यहाँ पे कैपिटल जो है वो दो पार्टनर्स के आएंगे, उसमें नेट प्रॉफिट और जो भी है हम लोगों ने लास्ट ईयर के क्या किया था, एक ही पर्सन के किया था, दैट इज़ योर सोल ट्रेडर. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2. ओके, सो दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम of your textbook. Okay, so tomorrow we'll see one other problem. Okay, so